Is my laptop screen visible to all of you? Yes, sir. Hello. Okay. So in today's class, we will discuss about the diseases caused by either the deficiency of metals or due to the excess of metal. ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे. So first question is how metals are absorbed or accumulate or come into our biological system. मेटल्स हमारे सिस्टम में हमारी बॉडी में आते कैसे हैं, पहला क्वेश्चन ये. कैसे आते हैं हमारी बॉडी में? हमारे फूड के थ्रू आते हैं. फूड के थ्रू राइट. सर. और फूड जी हमारा सर. कैसे, कहाँ से लेते हैं हम लोग? हम डायरेक्टली और डायरेक्टली वेजिटेशन पर डिपेंड करते हैं. और वेजिटेशन जो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं सॉइल से. राइट. तो ये हमारी बॉडी में आते हैं कहाँ से? सॉइल से. तो जो मेटल्स आयंस हम लोग अपने फूड के थ्रू लेते हैं वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे, फिर वहां से वो दे विल डिलीवर टू आवर सेल्स that require them. Metals that require in a particular body organ or tissue will be delivered by our digestive system through our transport system to that particular site of action. Then they are processed within the cell, and cell will conserve them for further use. They are reprocessed at the end of the lifespan of the molecule or the cell containing. So if cell uh, complete its life, then the metal or the essential element that present in that particular cell will reprocessed, and unrequired metal, excess amount of metal ions are eliminated either by our excrete occurs in a particular organ or a particular part of our body. Then the function performed by that metal get affected, and that will cause some type of malfunctioning of that particular organ, and that result in a disease. Similarly, excess of a free metal may produce toxic symptoms by combining with non-specifically with proteins or other biomolecules, or by distorting the normal metabolism of other metals. And in some cases, it also cause the formation of damaging free radicals like iron. So in today's class, we will discuss about metal deficiency and some diseases caused by metal deficiency. So one of the diseases that you all people have heard about is anemia. Anemia is result from the insufficient uh, amount of iron in our blood, right? So as you know that the main function of our blood is to transportation of different materials, and oxygen and carbon dioxide are also included in these essential materials. So oxygen bind with iron present in our hemoglobin, in our red blood cell, in our blood. So if we do not have sufficient amount of iron, the amount of oxygen that should be bound in normal condition will get decreased. So if we have less amount of iron in our body, the oxygen supply also get decreased. और ये होता क्यों है?
जनरली जो एनीमिया होता है वो मैक्सिमम केसेस में क्यों क्यों होगा, जो हमारा जो फूड है, राइट, हमारी जो डाइट है उसमें आयरन की सफिशिएंट अमाउंट ना हो, और ये हो सकता है कि सफिशिएंट फूड ही नहीं मिले, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एनीमिया या आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ मेटल्स हैं जिनके बारे में मतलब जिनकी वजह से डिफिशियंसी डिजीज क्या क्या हो सकती हैं। कैल्शियम जैसे आप जानते हो कि दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर स्केलेटन, इट इज मेन पार्ट ऑफ आवर बोन्स। सो इसकी वजह से क्या हो सकता है, बोन है वो वीक हो सकती है, इजीली वो ब्रेक हो जाती हैं, छोटी सी मतलब थोड़ा सा गिरते ही वो ब्रेक हो जाती है। सो बोन डिटीरियोरेशन कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। क्रोमियम डेफिशिएंसी कोज ग्लूकोज टॉलरेंस, ठीक है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की अमाउंट होगी उस अमाउंट को रेगुलेट करने में क्रोमियम का इंपॉर्टेंट रोल है। आयरन की वजह से एनीमिया, कोबाल्ट की वजह से भी एनीमिया हो सकता है, कॉपर की वजह से क्या हो सकता है, ब्रेन डिजीज हो सकती है, इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है, और हार्ट डिजीज हो सकती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। सिमिलरली जिंक की वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी अगर जिंक की डेफिशिएंसी होगी, और तो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, या जितनी होनी चाहिए वैसे ग्रोथ नहीं हो पाती। स्किन चेंजेस जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं आयरन एंड एनीमिया की। सो एनीमिया का एक जो मेन रीजन हमने पढ़ा कि क्यों वो हो सकता है, तो हो सकता है ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ डायट्री आयरन। सेकंड क्या हो सकता है, कुछ लोगों में क्या होगा कि अनदर कॉज ऑफ एनीमिया एग्जिस्ट इन इंडिविजुअल्स हु हैव ए म्यूटेंट वैरायटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो म्यूटेंट वैरायटी होगी उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। in which valine has been substituted for glutamic acid in the 6th position. So जो डीएनए होगा या जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, वहां पर जो एमिनो एसिड्स है उनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, वेलिन की जगह पर क्या आएगा, ग्लूटामिक एसिड आएगा, तो वो जो प्रॉपर अमाउंट में हीमोग्लोबिन बनना चाहिए वो अफेक्ट होता है, और उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। Interestingly, excessive studies have shown that this phenomena, which leads to sickling of the red blood cells, does not result from failure of the protein to bind heme or from changes in the auto binding constant of the iron atom. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल होंगे उनकी सिकलिंग होगी, बट ये मतलब उसके साथ में जो पोरफायरिन के बनने को या जो ऑक्सीजन बाइंडिंग है उसको अफेक्ट नहीं करती है। Rather, deoxy SBS polymerize into soluble ordered fibrous structure that lower the ability of blood to carry oxygen effectively to the tissues. बल्कि इसके बजाय क्या हो सकता है, जो deoxy SBS है वो पोलीमराइज होगा और सोल्यूबल फॉर्म में होगा, तो हीमोग्लोबिन की अमाउंट अगर लोअर होगी तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी इसके केस में अफेक्ट होगी। सो ये हो गया एनीमिया। मेजर जो कॉज है वो है, मेजर जो कॉज है वो क्या है, डाइटरी आयरन की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट। इसके अलावा जो कुछ कॉम्प्लिकेशन है वो जेनेटिक है। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जिंक डेफिशिएंसी। जिंक डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है, एक हमने अभी बात की कि उसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, स्किन चेंजेस हो सकते हैं उसकी वजह से, जिंक डेफिशिएंसी की वजह से। द एवरेज अडल्ट कंटेन approximately 2 grams of zinc and require a daily intake of 15 to 20 milligram, only half of which is absorbed to maintain this level. ठीक है, 2 ग्राम मतलब पूरी बॉडी में होना चाहिए, उसमें से हम लोग जो डेली इंटेक होना चाहिए वो 15 टू 20 मिलीग्राम होना चाहिए, जिसमें से हाफ नियर अबाउट 7 टू 10 मिलीग्राम ही बॉडी क्या कर पाती है, रिटेन कर पाती है, बाकी बॉडी से बाहर चला जाता है। Zinc deficiency occur in certain population where there is either an unbalanced diet
or food that inhibit zinc absorption. मतलब जो जिस पॉपुलेशन में होगा वहां पर या तो अनबैलेंस डाइट होगी और या फिर फूड, जो वो फूड ले रहे हैं वो क्या करता है, उसको रोकता है जिंक के एब्जॉर्प्शन को. एंड स्पेशली इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ द later phenomena is found in certain villages in the Middle East where phytates, organic phosphates present in unleavened bread chelate zinc ion and render it inaccessible. मतलब कुछ एरिया जैसे मिडल ईस्ट के कुछ विलेजेस की इसने बात की है, वहां पर जो फूड है, ठीक है, उसमें वो जिंक को बाइंड करने की कैपेसिटी होगी और जो जिंक अब्जॉर्ब होकर के बॉडी सिस्टम में जाना चाहिए था वो बॉडी सिस्टम में नहीं जा करके वो बॉडी उसको होल्ड नहीं कर पाती है और बॉडी से वापस बाहर आ जाता है. तो उसकी वजह से जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है. जिंक डेफिशिएंसी प्रोड्यूस ग्रोथ रिटार्डेशन, टेस्टिकुलर एट्रोफी, स्किन लीजन, पुअर एपेटाइट एंड लॉस ऑफ बॉडी हेयर. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये मतलब प्रॉब्लम उसकी इसकी वजह से हो सकती है. कौन कौन सी हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. इसमें हो सकता है ग्रोथ रिटार्डेशन. ग्रोथ रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, ग्रोथ में शायद फैक्टर अफेक्टिंग. हाँ, ग्रोथ है वो कम हो जाना. टेस्टिकुलर एट्रोफी, टेस्टिकल्स की जो साइज है उसको स्मॉल होना. स्किन स्किन लीजन, स्किन लीजन क्या होगा, स्किन एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है ना, और जैसा मतलब उसका टेक्सचर दिखना चाहिए वैसी वो नहीं होती है. पुअर एपेटाइट मतलब भूख का कम लगना. लॉस ऑफ बॉडी हेयर का कम होना या उनका झड़ जाना. ये सारे कुछ प्रॉब्लम है जो कि जिंक डेफिशिएंसी से होती है. अबाउट 30% ऑफ जिंक इन अडल्ट अकर इन स्किन एंड बोन्स. ठीक है, 30% होगा वो स्किन और बोन्स में होगा, विच आर आल्सो लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ द एलिमेंट. Zinc deficiency is readily resolved by dietary supplements such as zinc sulfate, but high dose, more than 200 milligram, cannot be given without inducing secondary effect of copper, iron and calcium deficiency. ठीक है, तो जिंक की डेफिशिएंसी को जिंक सल्फेट दे करके कम किया जा सकता है, बट वो जो अमाउंट है वो लेस देन 200 मिलीग्राम होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से सेकेंडरी इफेक्ट क्या हो सकते हैं, जिंक अगर एक्सेस अमाउंट में देंगे तो कॉपर, आयरन और कैल्शियम की जो होल्ड कैपेसिटी है या जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, जो बॉडी जिसको उनको अब्जॉर्ब करेगी उसको क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो सकती है इस केस में. सो ये जिंक डेफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे. नेक्स्ट इज कॉपर डेफिशिएंसी. More copper is found in the brain and heart than in other tissues except for liver, where it is stored as copper thionein and released as ceruloplasmin or in the form of complex with serum albumin. ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉपर की ब्रेन और हार्ट में होगी, और इसके अलावा लीवर में भी होता है जहाँ पर कि ये स्टोर होता है कॉपर थायोनिन के फॉर्म में और सीरुलोप्लाज्मिन के फॉर्म में और सीरम एल्बुमिन के फॉर्म में इसको रिलीज किया जाता है. द हाई मेटाबॉलिक रेट ऑफ द हार्ट एंड ब्रेन रिक्वायर्स रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ कॉपर मेटेलोएंजाइम्स इंक्लूडिंग टायरोसिनेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, डोपामाइन required monoamine oxidase and copper zinc superoxide dismutase. ठीक है, तो ये कुछ मेटलो एंजाइम्स हैं जो कि हार्ट और ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसकी कॉपर की हाई अमाउंट इसमें इनमें प्रेजेंट होगी. कॉपर डेफिशिएंसी विच कैन अकर फॉर रीजंस एनालॉगस टू दोज डिस्कस्ड अबव फॉर Fe and zinc leads to brain disease in infants, anemia since cytochrome oxidase is required for blood formation, and heart disease.
ठीक है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी के रीजन वही होंगे जो कि हमने अभी आयरन और जिंक में मेनली जो होगा वो फूड में प्रॉपर नहीं होना डाइट। तो ये क्या कर सकता है, इन्फेंट्स मतलब जो नवजात है उनमें ये ब्रेन की डिजीज कर सकता है, एनीमिया उनमें हो सकता है, क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन के लिए साइटोक्रोम चाहिए, साइटोक्रोम की फंक्शनिंग है वो, उसमें कॉपर है उसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो एनीमिया उनमें हो सकता है, और हार्ट डिजीज उनमें हो सकती है। सो ये कुछ 3 मेटल्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने बात की। अगर दूसरे मेटल्स भी कम होंगे, जैसे सोडियम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम की डेफिशिएंसी से क्या होगा, जो हम लोगों का सोडियम पोटेशियम पंप है या मेटल का बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्टेशन है वो अफेक्ट होगा। सोडियम की डेफिशिएंसी से ब्लड प्रेशर है वो भी इरेगुलेट हो सकता है, राइट। सिमिलरली कैल्शियम और मैग्नीशियम इनकी डेफिशिएंसी भी क्या करेगी, हम लोगों का जो स्केलेटन है, टीथ है, उनकी फंक्शनिंग को या उनकी वीक करती है। सो ये कुछ मेटल्स थे जिनकी डिफिशियंसी के बारे में हम लोगों ने बात की, जो कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स थे, और भी करेंगे इनके अलावा। अब अपना जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है वो है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मेटल्स। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मेटल क्या होगा, इफ मेटल इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट and it is not eliminated from our biological system, then it will store inside our body tissues or organs, that will affect the functioning of other metals, or it also cause malfunctioning of that particular organ। ठीक है, अगर एक्सेस अमाउंट में आ जाए। अब ये जो एक्सेस अमाउंट होगी जिसको कि टॉक्सिक इफेक्ट भी बोलते हैं, एक्सेस अमाउंट अगर ज्यादा अमाउंट हो मेटल का, ये एसेंशियल के लिए भी हो सकता है और नॉन एसेंशियल, मतलब जो हमारी बॉडी में जरूरी नहीं है वो भी क्या आ सकते हैं, हमारी बॉडी में आ सकते हैं। Mechanism of the toxicity of metal is very complicated. Generally, toxicity of metals may result from one of the following reasons: blocking the essential biological function, groups of biomolecules such as enzymes. So, excess amount of metal can cause the non-functioning of biomolecules such as enzymes. Amino acid residue like serine is OH functional group, have OH functional group, cysteine have SS group, and histidine have N group, often constitute the active sites of enzymes. A toxic metal ion may bind with these functional groups and block the activity of the enzyme. Right? So amino acid residue क्या है ना, उनके अंदर जो फंक्शनिंग साइट्स होंगी, जैसे सीरीन में OH होगा, सिस्टीन में SH और हिस्टिडीन में N ग्रुप होगा, तो ये क्या कर सकते हैं, मेटल इनके साथ में आकर के बाइंड हो जाएंगे, और अगर वो बाइंड हो गए तो वो जो बॉन्ड होगा वो परमानेंट होगा, मतलब इनकी जो फंक्शनिंग है वो क्या हो गई, अफेक्ट हो गई। डिस्प्लेसिंग द एसेंशियल मेटल आयन फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में से जो एसेंशियल मेटल आयन है उनको क्या कर सकते हैं, ये डिस्प्लेस कर सकते हैं। ए बायोमोलिक्यूल विद ए फॉरेन मेटल आयन लॉसेज इट्स एक्टिविटी। ठीक है, बायोमोलिक्यूल में जो मेटल आयन होना चाहिए उसके अलावा अगर कोई मेटल आयन आता है तो क्या हो जाएगा, जो फंक्शनिंग होनी चाहिए उसकी वो अफेक्ट हो जाएगी। मॉडिफाइंग द एक्टिव कॉन्फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी जो एक्टिव कॉन्फॉर्मेशन है ना, आप ये जानते होंगे कि जो आइसोमर्स हैं वो पर्टिकुलर आइसोमर ही एक एंजाइम की एक्टिव साइट है उसके ऊपर आकर के क्या कर सकता है, बाइंड हो सकता है, और उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है वो उसमें हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, उसकी वजह से अफेक्ट हो सकता है, किसकी वजह से, फॉरेन अगर वहां पर मेटल आयन आ जाए तो। Biomolecules are having specific active conformation, and if this active conformation is lost due to the coordination of a metal ion, the activity of the biomolecule is lost. आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? यस सर, यस सर। हाँ, अगर ये कई बार क्या होता है कनेक्शन लॉस्ट हो, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है तो मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है कि कितने बच्चे जुड़े हुए हैं और आप लोगों को आवाज जा भी नहीं रही है या नहीं, है ना। तो अगर मान लो लॉस्ट हो जाए कनेक्शन, मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो आप तुरंत मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर देंगे प्लीज।
अब हम बात करते हैं एक्सेस इफेक्ट, कॉपर ओवरलोड एंड विल्सन्स डिजीज। कॉपर का ओवरलोड मतलब कॉपर एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो क्या हो सकता है? विल्सन्स डिजीज रिजल्ट फ्रॉम ए जेनेटिकली इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिफेक्ट in which copper can no longer be tolerated at normal level. The clinical manifestations are liver disease, neurological damage, and brown or green rings in the cornea of the eyes. Excess amount में होगा तो ये सारे malfunction उसमें हो सकते हैं. Patients suffering from Wilson's disease have low level of the copper storage protein ceruloplasmin. The gene and gene products responsible for the altered metabolism have not yet been identified. मतलब जो जिन पेशेंट्स में ये विल्सन्स डिजीज होगी उनमें क्या होगा, जो कॉपर स्टोरेज प्रोटीन होगी जैसे सिरुलोप्लाज्मिन है, वो क्या होगा, उसके अमाउंट कम होगी उसमें. किलेशन थेरेपी यूजिंग K2CA EDTA का एक कॉम्प्लेक्स है. The CF2 plus ion being added to replenish body calcium stored depleted by EDTA coordination 2,3 dimercaptopropane 1 ol, शॉर्ट में इसको बोलेंगे PAL, ब्रिटिश एंटी लेवोसाइट, और डी पेनिसिलेमिन टू रिमूव एक्सेस कॉपर कॉज द सिम्टम्स टू डिसअपियर. मतलब कॉपर की अगर एक्सेस अमाउंट है तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, किलेशन थेरेपी को यूज करते हैं. और उसमें जो मेन लिगेंड्स को यूज करेंगे वो करेंगे EDTA को यूज करेंगे, 2,3 डाइमरकेप्टोप्रोपेन 1 ऑल को यूज करते हैं, और डी पेनिसिलिन को भी यूज किया जाता है. तो ये क्या करेगा, कॉपर को बाइंड कर लेता है वहाँ बॉडी में जाकर के, और उसके बाद में क्योंकि जब ये इसका किलेशन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो वो क्या होगा, वो उसमें आ जाएगा, सोल्यूबल फॉर्म में आएगा, और सोल्यूबल फॉर्म में आने के बाद में वो ब्लड के थ्रू आ जाएगा, किडनी से पास होकर के वो क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है. तो जो सिम्टम्स जो आए हैं वो सिम्टम्स भी क्या होते हैं, इसकी वजह से डिसअपियर होने लगते हैं. The sulfyl hydryl group of the later two compounds presumably affect removal of copper as copper plus थायोलेट कॉम्प्लेक्स. जो लास्ट वाले दो के बारे में हमने बात की थी, BAL के बारे में और पेनिसिलिन के बारे में. Wilson's disease offer an excellent opportunity for modern methodologists to isolate and clone the gene responsible for this altered CU metabolism, ultimately providing a rational basis for treatment. ठीक है, सो विल्सन डिजीज से ये भी मतलब फाइंड आउट किया गया कि कौन सा जीन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट है वो थोड़ा इफेक्टिव हो. Iron may also cause toxic effect. So iron toxicity. Chelation therapy is also used to treat iron overload. Acute iron poisoning, such as the resulting from accidental ingestion of FeSO4 tablets, results in corrosion of the gastrointestinal tract. Chromic iron poisoning or hemochromatosis arises from digestion of excess, usually supplied by vessel used for cooking. ठीक है, मतलब आयरन की भी क्या हो सकती है, एक्सेस अमाउंट हो सकती है. वो किसकी वजह से हो सकती है, वो हो सकती है कि आयरन है वो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में चला जाए. तो इसमें क्या होगा कि जैसे किसी ने आयरन की टेबलेट है ले ली, FeSO4 के फॉर्म में होगा, टेबलेट जो होगी उनमें FeSO4 के फॉर्म में होगा, तो वहाँ पर ये क्या हो सकता है, स्टोर हो जाए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो बॉडी से, इसको बाहर नहीं निकाला जाए एक्सेस अमाउंट को. कोरोजन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वजह से ये हो सकता है. क्रोनिक आयरन पॉइजनिंग और हीमोक्रोमेटोसिस. जो ये जो हीमोक्रोमेटोसिस है ये क्या है, ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है. ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है. तो इस ये जब मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा, आयरन कंटेनिंग जो पिगमेंट है वो टिश्यूज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, और इसकी वजह से जॉइंट में या फिर जो स्टमक एब्डोमिनल रीजन है उसमें पेन होगा, वीकनेस हो सकती है, फैटीग हो सकता है. और उसकी वजह से क्या होगा, स्किन है वो ब्रोंजिंग, स्किन की ब्रोंजिंग मतलब ब्रॉन्ज कलर के जैसे वो स्किन होना शुरू हो जाता है. आर्थराइटिस इसकी वजह से हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है. ठीक है, और हार्ट डिजीज भी इसकी वजह से, हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से हो सकती है. A classic case of later is
Siderosis induced in members of the Bantu tribe in South Africa who consume large quantities of beer brewed in iron pots and who suffer from deposits of iron in liver, kidney and heart causing failure of these organs. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल क्या है, वो है बांटू ट्राइब्स साउथ अफ्रीका में, वहां पर उन्होंने क्या किया, ये बियर को खा लिया जो कि आयरन पोर्ट्स की वजह से मतलब वो जो एरिया था उसमें आयरन ज़्यादा था, तो वहां से उन्होंने जो भी वेजिटेशन खाया उनकी बॉडी में आया और उसको खाने की वजह से बांटू ट्राइब्स के लोगों में आयरन डिपॉजिट हो गया, उसकी वजह से उनके लीवर, किडनी और हार्ट है वो फेलियर के केस बहुत सारे आए थे। द किलेटिंग एजेंट ऑफ चॉइस फॉर आयरन टॉक्सिसिटी इज द सिड्रोफोर ferroxamine, a polypeptide having a very high affinity for Fe3 but not for other metals. Ferroxamine chelates occur naturally in bacteria as iron transport agents. ठीक है, तो ये इसको भी किलेशन थेरेपी से क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अदर एसेंशियल मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम है। Calcium level in the body are controlled by vitamin D and parathyroid hormone. Failure to regulate calcium leads to calcification of tissues, the formation of stones and cataracts. कैल्शियम का एक्सेस होगा तो क्या होगा, स्टोन्स बन सकते हैं, कैटरैक्ट्स हो सकता है, और जो विटामिन डी पैराथायरॉइड हार्मोन है वो क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करते हैं। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्रोनिक मैंगनीज poisoning which can occur following ingestion of metal oxide dust, for example among miners in Chile, produce neurological symptoms similar to Parkinson's disease. ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज में क्या होगा, पार्किंसन डिजीज में एल्यूमिनियम है वो डिपॉजिट होता है ब्रेन में, तो उसी की तरह से यहाँ पर भी क्या होंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे। और ये क्या होगा, एक्सीडेंटल मतलब इंजेक्शन होगा। एक्सीडेंटल इंजेक्शन में क्या हो सकता है, जो लोग माइंस में काम करते हैं क्रोमियम की, वहां पर ये हो सकता है, जैसे चिली का एक एग्जांपल इसमें है। न्यूरॉन डैमेज हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, although zinc toxicity is rare, it can lead to deficiency in other essential metals, notably calcium, iron and copper. Cobalt poisoning leads to gastrointestinal distress and heart failure. Metal poisoning by those elements has been treated by chelating agents, most frequently EDTA complex. ठीक है, तो जो कोबाल्ट है उसकी वजह से भी हो सकता है, और इसमें जो मैन क्या करते हैं, इसमें जो थेरेपी यूज करते हैं, ठीक है, मेटल एक्सेस को ट्रीट करने के लिए जो मैन थेरेपी यूज करते हैं वो क्या है, वो है किलेशन थेरेपी। मतलब कोई लिगेंड ऐसा यूज करेंगे जो कि उसको किलेट करके, बाइंड करके बाहर लेके आ जाए बॉडी से। इसके अलावा भी बहुत सारे और मेटल्स हैं जो कि एसेंशियल नहीं है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आप जानते हैं कि नेचर में बहुत ज़्यादा है, और आजकल हम लोग एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि ये हमारे लिए ये वो नहीं है, मतलब एसेंशियल नहीं है, बट फिर भी ये बॉडी के अंदर जाता है। सो इसकी वजह से क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या हो सकता है। अल्जाइमर जो डिजीज है उसमें जो ब्रेन पेशेंट होंगे उसके ब्रेन में ये क्या हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है, हालांकि जो मैंने यूटेंसिल वाली बात बोली, यूटेंसिल से इतना इजीली नहीं जाता जितनी अमाउंट में, मतलब क्या बोले उसको कि जितना रूमर है इसके बारे में उससे कम अमाउंट में ही ये जाता है बॉडी में। बट हाँ, एल्यूमिनियम का जब से यूटेंसिल्स को यूज किया तब से इसकी अमाउंट है वो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें क्या हो गई है, इंक्रीज हुई है। इसी टाइप से जो दूसरे मेटल्स हैं, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि उनकी वजह से क्या हो सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं। अब कुछ ऐसे मेटल्स जो कि इसकी वजह से जो वर्तमान में हम लोगों की साइंस है उसकी वजह से भी बॉडी सिस्टम्स में एंटर करते हैं, जैसे प्लूटोनियम, ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियर एज। Although few individuals have been affected,
क्योंकि इनके लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या जो भी साइट्स हैं वो क्या है, फिक्स्ड रीजन्स में हैं, तो सारे लोग तो उससे अफेक्टेड नहीं होते, बट जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। इंजेक्शन ऑफ 239 प्लूटोनियम, फॉर एग्जांपल, ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ PuO2 एट न्यूक्लियर रिएक्टर साइट्स कैन हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। प्लूटोनियम एमिट हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स लीडिंग टू melangenensis of bones, melangenensis of bone, liver, lung, and lymph nodes, to which tissues it is transported by transferrin with a maximum tolerated dose of only 1.5 microgram. Plutonium is among the most toxic metals known. Diethyl, diethylene triamine pentaacetic acid DTPA salts and सिड्रोफोर्स आर स्पेशली इफेक्टिव, तो इनको यूज किया जाता है इसको मतलब किलेशन के लिए। इम्प्रूवमेंट ओवर द नेचुरली अकरिंग किलेट्स हैज बीन मेड बाय टेलरिंग द लिगेंड टू इनकैप्सुलेट कंप्लीटली द 8 कोऑर्डिनेट PU सेंटर्स, प्लूटोनियम सेंटर। ठीक है, तो टेलरिंग का मतलब क्या हो गया कि उस जो भी लिगेंड है उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं कुछ और उसके साथ में जोड़ करके, जिससे कि वो इजीली किलेट कर लेता है, प्लूटोनियम को बॉडी से बाहर ले आता है। मरकरी, मरकरी का इफेक्ट क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट। मरकरी इज रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट एज Hg सेकंड आयन थ्रू weathering of its most common ore HGS, red cinnabar. Organomercurial of general formula RHGX used in agriculture have also entered the environment as toxic waste. ठीक है, तो ये और के थ्रू आएगा, और या फिर मतलब जो एग्रीकल्चरल कुछ केमिकल्स यूज होते हैं उसमें ये क्या हो सकता है, इसका RHGX प्रेजेंट हो सकता है। Both RHGX and HGX2 compound bind avidly to sulfhydryl groups in protein, which can lead to neurological disease and kidney failure. Metallothionein is a favored protein target, which may help to limit mercury toxicity. A highly publicized case occurred in 1953 at Minamata, Japan, where 52 people died after eating mercury-containing fish and crustacean near a factory waste outlet. ठीक है, तो क्या था, एक फैक्ट्री से ये मरकरी वाला कुछ वेस्ट निकला और वो चला गया कहाँ पर, सी में। सी के जिस पोर्शन में गया वहां पर फिशेज को मिनीमेटा रीजन के लोगों ने क्या किया, कैप्चर किया, और उनको वो खाने से 52 लोगों की डेथ इसमें हो गई थी। तो मिनीमाइटा इसको ये फेमस केस है। द volatile elemental form of mercury is reportedly non-toxic, but its conversion to alkyl mercury compounds by anaerobic microorganism utilizing a vitamin B12 biosynthetic pathway constitute a serious health hazard. मतलब मर्करी अगर एलिमेंटल फॉर्म में तो वो hazardous नहीं है, बट अगर वो आ गया किसके फॉर्म में, अल्काइल मर्करी कंपाउंड के फॉर्म में आ गया, तो वो hazardous है। Because of the high affinity of mercury for sulfur donor ligands, mercury poisoning is treated by BALNAC. Penicillin has also been proposed. So BAL के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। Recently, a very interesting natural detoxification system has been discovered in bacteria resistant to mercury. This system, when fully elucidated, might provide important strategy for treating heavy metal poisoning in humans. Presumably, under environmental pressure, bacteria have developed mechanism of resistance to HgX2 and HgX compounds in which mercury is recycled back to Hg in its zero oxidation state. जो सोर्सेज हैं इसके वो मर्करी पोल्यूशन आर इंडस्ट्रियल वेस्ट, माइनिंग, पेस्टिसाइड्स, कोल एंड लिग्नाइट्स. It is a well-known toxic metal came to limelight after the incidence of Minamata disease in 1953-8 in Japan. 111 cases of mercury poisoning were reported who had eaten mercury-contaminated fish from Minamata Bay. Among them, 45 died. The sea fish were found to be containing 27 to 102 part per million of Hg in the form of metal mercury. ठीक है, तो इसकी वजह से वहां पर ये डेथ हुई थी. ओके, रीजन फॉर टॉक्सिसिटी, क्यों है ये टॉक्सिक, इसको समझते हैं. मरकरी इतना ज्यादा टॉक्सिक क्यों था?
Toxicity of mercury is based on the strong affinity, very high formation of constant between 1016p and 10p22p for the deprotonated form of thiol ligands such as cysteine. Therefore, thiol RSS with sulfyl hydryl group SS are also called mercaptans. तो देखो जो मतलब अपने एंजाइम्स होंगे या जो हम लोगों की बॉडी में कुछ बायोलॉजिकली एक्टिव लिगेंड्स एमिनो एसिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, उनमें जिनमें सल्फर प्रेजेंट होगा उनके साथ में मर्करी क्या करता है, स्ट्रांगली बाउंड हो जाता है। आपने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी पढ़ी होगी, तो आप ये जानते हैं कि मर्करी है वो क्या सॉफ्ट एसिड है, और थायोल डोनेटिंग जितने लिगेंड हैं मतलब जिनमें थायोल ग्रुप एज ए डोनेटिंग एलिमेंट होगा, एटम होगा, वो क्या होते हैं सॉफ्ट बेस होते हैं। तो सॉफ्ट एसिड बेस का यहाँ पर क्या होता है, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो इससे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी से भी इसको आप समझ सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर जिस जिस एमिनो एसिड के साथ में, प्रोटीन के साथ में, एंजाइम के साथ में बाइंड करेगा, उसकी फंक्शनिंग को क्या करता है, ये अफेक्ट कर देता है। So Hg binds strongly with the thiol group of protein and enzymes, and this binding changes the conformation of protein about the active sites. Mercury is a soft acid, and sulfur and SS group is a soft base. So strong interaction between mercury and SS group can be explained on the basis of a strong source of binding. So ये mercury का पॉइजनिंग इफेक्ट हो गया। ये वो मेटल्स हैं जो कि हम लोगों के ये एसेंशियल नहीं है। ऐसे ये कैडमियम है। The source of cadmium pollution in urban areas are metallurgical plants, cadmium plating and battery fabricators. Acute cadmium poisoning leads to nausea. Nausea मतलब nausea किसको बोलेंगे? nausea का मतलब क्या हो गया? मतलब uneasy फील करना, ठीक है ना? इसको मतलब जी मितलाना या जी घबराना ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, सेलाइवेशन हो सकता है, मतलब सेलाइवा एक्सेस अमाउंट में बने, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। कैडमियम डिपोजिशन tends to be cumulative in the kidney with lower concentration in the liver. Another characteristic of CD poisoning is brittleness of bones. bones और brittle हो जाती हैं, मतलब easily टूट जाती हैं, और liver में डिपॉजिट होता है। CD occurs in nature in association with zinc minerals. A severe outbreak of chronic CD poisoning occurred along the Jinsu River of northwest Japan and was known as Itai or Ouch Ouch disease. Over 200-year period, around 100 people died. ठीक है, तो इसकी वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में ये डिजीज थी जो लोकली इटाई या फिर आउच आउच के नाम से जानते थे। 100 पीपल उसमें लगभग 20 साल में मारे गए। In 1961, CD was found to be the cause. The reason was due to a old disused zinc mine and river water which was containing CD used for irrigation of rice, and people died after eating the rice. ठीक है, मतलब लोगों ने क्या किया, कल्टीवेशन किया राइस का उस एरिया में जहाँ पर की CD की अमाउंट ज़्यादा थी, वहाँ जिंक माइंस थी, तो उसको वो राइस में है और राइस से लोगों के बॉडी में गए और उसकी वजह से पॉइजनिंग हो गई। इसका रीजन क्या है पॉइजनिंग का? CD is similar to zinc, therefore CD can displace zinc in many zinc enzymes, right? So like Hg, CD also binds strongly with the SS group of cysteine residues of enzyme, for example carbonic anhydrase, dipeptidase, carboxypeptidase, etc. CD, like other toxic metals, and affect the active conformation of बायोमोलिक्यूल्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, या तो ये जिंक को रिप्लेस कर देता है सिमिलरिटी की वजह से, या फिर ये भी मरकरी की तरह से क्या करता है, एसएच जो ग्रुप वाले डोनर साइट्स हैं वहां पर ये बाइंड करेगा और उनकी जो फंक्शनिंग है उसको अफेक्ट करता है। लेड लेड की वजह से पॉइजनिंग होगी, तो उसमें सोर्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है? बैटरी इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट सिंगल यूजर ऑफ लेड, बट leaded petrol accounts for more than 20% of total lead consumed per year, and 90% of lead released to atmosphere is from gasoline exhaust। ठीक है, तो लेड के जो मेन सोर्स हैं जहाँ से कि बॉडी के अंदर जा सकता है, या तो बैटरी इंडस्ट्री है, या फिर जो हम लोग लेडेड फ्यूल को यूज करते हैं, पेट्रोल वगैरह है, टेट्राइथाइल लेड उसके अंदर होगा, तो ये एटमॉस्फेयर में जाता है। द ट्राइथाइल
lead cation C2H53 Pb is formed from tetraethyl lead by the dissociation of a carbanion. Toxicity of this p organometallic cation result from the permeability of membrane, including the very discrimination blood-brain barrier, causing several disorder of central and peripheral nervous system, cramps, paralysis, loss of coordination. ये सारे इसके क्या हैं? डिजीज के सिम्टम्स हैं. वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ लेड पॉइजनिंग इज एनीमिया. एनीमिया भी इसकी वजह से हो सकता है. इसका रीजन क्या है, क्यों टॉक्सिक हो गए? लाइक एचजी एंड सीडी लेड इनहिबिट एसएच एंजाइम बट लेस स्ट्रांगली. ठीक है, ये भी क्या करेगा, एसएच जो डोनर साइड्स होंगे एंजाइम्स की उसके साथ में ये बॉन्ड बना लेता है. Major biochemical effect of Pb is its interference with heme synthesis by inhibiting several of key enzymes involved in the overall process of heme synthesis. तो ये heme synthesis है उसको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है. अब अपना इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेटल एज कार्सिनोजेंस. ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे.